Well, let me start this edition of Live and Breaking with the latest that we are learning on the Liquorgate probe. Now, according to sources, the Enforcement Directorate is examining the replies sent by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal regarding his refusal to appear before the ED for the third straight time. In fact, if sources are to be believed, fourth set of summons will be sent to Arvind Kejriwal in the Liquorgate probe. Now, note that the Aam Aadmi Party national convener had refused to depose before the ED for the third time on Wednesday, saying that non-disclosure and non-response approach by the agency cannot sustain the test of law, equity or justice, and this obstinacy of the ED tantamounts to assuming the role of a judge, jury and executioner. So as quoted by Arvind Kejriwal, calling these summons as something which is not needed. Meanwhile, sources said that ED is currently examining Arvind Kejriwal's 5-page reply sent to the investigating officer of the case on Wednesday and may reject his charges of calling the summons as illegal. The agency is also likely to issue its fourth summons to Arvind Kejriwal as per provisions of Prevention of Money Laundering case. So that is the latest that we are tracking in the probe into Liquorgate. Sources in ED tell that there is going to be a fourth set of summons that will be sent to Arvind Kejriwal. First up, listen in to the reactions coming in. First up, the Aam Aadmi Party response to summons by Arvind Kejriwal. अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ और उनकी लड़ाई कांग्रेस से ही थी, कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है और यह प्रचार करने में सफल भी रह गए। और न कोल घोटाला था, न G2 स्पेक्ट्रम था, बाद में तो जांच में कुछ निकला ही नहीं। अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और जो आरोप लगाए हैं उन पर स्पष्ट अपना मत देना चाहिए, तब तो वही इमेज बची रहेगी। वरना बार बार ईडी के नोटिस को उलाहना करना राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया, सोनिया जी ने तो नहीं किया, हमारे नेता नहीं किए, तो समझा जाएगा कि जो कह रहे थे वो था नहीं। जो ईमानदारी की बात कर रहे थे वो ईमानदारी नहीं रही। All right, let's go across to Piyush Shori, who's joining us live from Arvind Kejriwal's residence. Piyush, to begin with, once again, take us to the detailed statement that's coming from Arvind Kejriwal, the reasons that he cited for not appearing before the Enforcement Directorate for third straight time. So, Samisha, what I can tell you is that there are three major points which AAP convener Arvind Kejriwal has sent to ED in trying to say that why he would not come to questions sent to him by the Enforcement Directorate. The first question definitely is that he has maintained it categorically that the summons that have been sent to him is illegal. Second important point, he says that why he should not attend the summons is because he wants clarity that whether he would come over there as a witness or whether he would come over there as an accused. The third and in a way perhaps a very contentious point is that Arvind Kejriwal, as along with the AAP leadership, have demanded that since he is a sitting chief minister, since he is sitting in the constitutional post, it is incumbent upon the Enforcement Directorate to also send to him the line of questions that are going to be sent to him, that are going to be asked from him if
and when the probe occurs. So there are the three major points which occurs. Now, from the very beginning, Aam Aadmi Party has maintained that the summons that are sent to Arvind Kejriwal is illegal. There are no evidences which maintains that Arvind Kejriwal is involved in this alleged liquor scam, and this is all a political witch hunt which has been done at the behest of a political party, not only to malign the AAP party but also arrest Arvind Kejriwal. Now, in the morning, there was a lot of political hustle and bustle over here at the official residence of Arvind Kejriwal, where it was expected that perhaps the Enforcement Directorate might come into his residence, raid and subsequently arrest. However, nothing of that happened, and as now what we have been told by the sources is that Enforcement Directorate perhaps is all set to send the fourth summon to AAP convener Arvind Kejriwal. When will that happen? Only time will tell. But also I can tell you is that now in 25 minutes or so, Arvind Kejriwal is all set to hold a press conference in which he would make it more clear of why he is skipping the summons sent to him by the Enforcement Directorate. And I can tell you one thing for sure, for those people who have been tracking Aam Aadmi Party for long, there is never a dull moment as far as the press conference of Arvind Kejriwal is concerned. Last time, when he was summoned by the Central Bureau of Investigation, Arvind Kejriwal again held a press conference in which he again made several startling allegations of why he's been fixed into this political scam, how it has all been done at the behest of BJP, and how he will continue to fight despite there are allegations of corruption that have been leveled against him. So yes, we will be now waiting and watching that what actually Arvind Kejriwal is going to speak in the press conference, which is going to be held at around 12 p.m. Back to you in the studio. Right. Piyush, stay with us. So, of course, stand by for that important press conference by Arvind Kejriwal that is expected at 12 p.m. Meanwhile, note that the AAP continues to call it a false case, whereas the BJP is hitting out at Arvind Kejriwal, calling him the real kingpin of the liquor gate and asking why is Kejriwal even running away from the probe by the central agency. केजरीवाल उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट विपाशना है। कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव है। लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ईडी को अपने सवालों के जवाब चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके यहां वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कभी न कभी आपको ईडी के पास जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत सारे सवालों के जवाब है। जिस प्रकार से के अरविंद, जो मनीष सिसोदिया की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया जिसमें 5% से 12% कमीशन की गई। इसके सवालों के जवाब तो आपको देने अरविंद केजरीवाल साहब। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 350 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है, उसका सवालों का जवाब तो आपको देना ही है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं ईडी के जिसको आपको देना है। आप कब तक भागेंगे अरविंद केजरीवाल साहब? ये जो डर है आपका कि कहीं ना कहीं जिस दिन भी आपको सवालों पे जवाब देने के लिए जाएंगे आप गिरफ्तार हो जाएंगे, यही डर दिखाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। असली मास्टरमाइंड जो है इस पूरे भ्रष्टाचार के, वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो आज नहीं तो कल जब भी होगा अरविंद केजरीवाल साहब, कानून के तहत आप पे कार्रवाई होगी, ये साफ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है, पर अब हंगामा भी बरपा रहे हैं। जांच एजेंसी क्या इन्हें बताकर आएगी, या जांच एजेंसी किसी को बताकर आती है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे। भगोड़ों की तरह व्यवहार आपने किया, लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, हंगामा बरपा रही है।
अरे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, अपनी चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं आप। शर्मनाक है आपका व्यवहार। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? और ईडी के साथ आपका जो रवैया है, एक के बाद एक 3 सम्मन पे आप जा नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ये शर्मनाक है। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। और आप तो ईमानदारी की बातें करते थे, आज आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। आपके जो साथी जेल गए उनमें से किसी को जमानत नहीं मिल रही है, और अब आप एक चोरों जैसा रवैया, एक ऐसा व्यवहार जैसा व्यवहार अपराधी करते हैं, पेशेवर अपराधी करते हैं ऐसा व्यवहार। एजेंसी के सामने जाने से बचना, बहाने बनाना, भागना, और इसके बाद ये जो विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी खेल रही है, इस विक्टिम कार्ड की गुंजाइश कहां बची है? विजय नायर को जमानत नहीं मिली, सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, संजय सिंह को जमानत नहीं मिली, तो अब कौन सा विक्टिम कार्ड और कैसी ईमानदारी? ये सारे निर्णय तो देश की अदालतें कर रही हैं। मुझे लगता है कि आपने कोई भी अपराध किया हो, लेकिन भारत के संविधान का सम्मान करते हुए आप एजेंसी के सामने जाइए, अपनी बात रखिए और कानूनी प्रक्रिया को फेस कीजिए। इस प्रकार का रवैया दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये पेशेवर अपराधियों वाला रवैया है। करेंगे शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना शिष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड और करेंगे ड्रामेबाजी। आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए, नौटंकी और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल जाना चाहिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने एक बार कहा था 800 करोड़ रुपए रखे हैं, हमारी पार्टी तोड़ देंगे जी, ऑडियो टेप है जी। क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा सीबीआई हमें गिरफ्तार कर देगी जी। क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा आईबी रिपोर्ट आई है जी, हम गुजरात चुनाव जीत रहे जी। क्या हुआ उसका? इसीलिए ये आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह है जो बार बार कहती है भेड़िया आया, और फिर बच्चे का विश्वास करना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केवल विश्वास तोड़ा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं। कोर्ट आपको, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को 1-1 साल तक राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनी ट्रेल है। सारी जांच एजेंसियों के साथ कॉपरेट करने के बदले आप भगौड़े बनकर फिर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी आप कह रहे चुनाव में व्यस्त है, कभी कह रहे विपासना में व्यस्त है, और उसके बाद आप एजेंसीज को डिक्टेट कर रहे हैं कि ऐसे एजेंसी काम करे, वैसे एजेंसी काम करे। जैसे हेमंत सोरेन जी 7 समन मिस कर देते हैं, वैसे केजरीवाल जी 3 समन मिस कर देते हैं। दोनों में कई सारे मुझे लगता है समानताएं भी नजर आती है। और अब फिर से विक्टिमहुड कार्ड खेलने का एक नया पैंतरा। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, रिपोर्ट कार्ड दीजिए केजरीवाल जी। शराब घोटाले में 2.5% से 12% कमीशन, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को देना, ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने देना, हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब कंपनीज को दिलवाना, इस पर जवाब दीजिए। चोर की मूंछ में कुछ तो तिनका है।